Good morning, students. Today we will see analysis of sentences. So, what is the meaning of analysis? Analysis means to break sentence into grammatical elements or grammatical parts. एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी वाक्य को खंडित करना, किसी वाक्य को उसके व्याकरण के खंड में बांटना। तो एनालिसिस के माध्यम से हम वाक्य का वर्गीकरण तीन प्रकार से कर सकते हैं: सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, complex sentence and compound sentence. So analysis helps us to categorize sentence into three parts, that is simple sentence, complex sentence and compound sentence. Let us first see what is simple sentence. So simple sentence is a group of words arranged in a manner which makes sense. This is sentence. And what is simple sentence? Simple sentence will have a subject and a predicate of its own and will have a complete meaning. Example: Ram is a good boy. Let us analyze this sentence. Ram is a good boy. So we write Ram as subject, is a good boy is predicate. So the above sentence is a simple sentence with one subject and a predicate. Now let us make another sentence as my father helps me in my studies. So my here is subject qualifier, father is subject word, helps me in my studies is predicate. तो एक और उदाहरण देख लेते हैं सर। जो है उसमें माई फादर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज है। तो माई क्या है? माई यहाँ सब्जेक्ट क्वालिफायर है। फादर क्या है? सब्जेक्ट वर्ड है। हेल्प्स मी इन माई स्टडीज क्या है? प्रेडिकेट है। तो हम लोगों ने समझा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, कम से कम एक प्रेडिकेट होगा, है ना। और उसको हिंदी में हम लोग सरल वाक्य भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज प्रेडिकेट. लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू द प्रेडिकेट साइड. Example is he sold his house at a high price. Here he is subject, sold is verb. His house at a high price is adverbial qualification. His house at a high price is adverbial qualification. So the predicate over here has been divided as verb and adverbial qualification or adverbial phrase. Sold is verb and his house at a high price is adverbial qualification. What is complement? Complement क्या है? The additional word or words by which predicate is made complete are called complement. है ना? Additional word, additional शब्द, कुछ विशेष शब्द जो हम जोड़ते हैं, है ना, या शब्दों को जो हम जोड़ते हैं प्रेडिकेट में ताकि प्रेडिकेट को उसका पूर्ण अर्थ मिल जाए, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया, दिस इज, ये वाक्य इनकम्प्लीट है, अपूर्ण वाक्य है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि दिस इज से कोई मतलब नहीं निकल रहा है। दिस इज नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस, इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। नाउ इफ वी ऐड मनीष, अगर हम मनीष उसमें जोड़ दें तो सेंस इज कंप्लीट, तो अर्थ जो है पूर्ण होता है। Manish is subjective complement as this relate to subject. This is subject, is verb, and Manish is the predicate part. It is completing the predicate. The word Manish after being added after is completing the sentence, is giving complete sense to the sentence, as well as it acts as a complement. Complement of the verb. It is subjective complement. So why? Because Manish has been related to the subject this. Now let us talk about the objective complement. Mr. Narang named his son Jayant. Verb is named, object is his son, and objective complement is Jayant. So I think मेरे समझ से प्रेडिकेट की समझ जो है पूर्ण हो गई होगी कि प्रेडिकेट में क्या होता है। प्रेडिकेट में वर्ब होता है और वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस दैट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज and one or more subordinate clause or dependent clause is called complex clause, complex sentence. It is clause here, so we cannot write clause, it will be sentence. Okay, so here it will be
what it will be sentence. So कॉम्प्लेक्स क्लॉज की जगह पर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे, है ना, और तो हमारा सेंटेंस जो है वो परिभाषा जो है पूर्ण होगा. So the sentence that has one independent clause and one or more subordinate clause or dependent clause is called complex sentence. Now, what is next? Example, let us see one example of complex sentence. One example of complex sentence is he came in when it was raining. He came in when it was raining. वह आया था अंदर जब वर्षा हो रही थी. He came in is principal clause. When it was raining is subordinate clause. Subordinate clause is dependent clause and it depends upon the principal clause for its meaning. Principal clause is independent clause. It does not depend on any part of the sentence for its meaning. तो यहाँ देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वैसा सेंटेंस होता है जहाँ पर कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो. तो वैसे सेंटेंस के भाग को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. यहाँ देखिए एग्जांपल है. ही केम इन व्हेन इट वाज रेनिंग. वह अंदर आया जब वर्षा हो रही थी. तो ही केम इन जो है प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि वो उसका जो मीनिंग है, उसका जो सेंस है वो कंप्लीट है. व्हेन इट वाज रेनिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है क्योंकि वह प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है अपने अर्थ के लिए. उसके पास अपना पूर्ण अर्थ नहीं है. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का हम फिर वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं. नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पर नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के रूप में कार्य करता है. जैसे आई नो व्हाट ही ईट्स एक उदाहरण है. आई नो जो है, यहाँ नो जो है वर्ब है और व्हाट ही ईट्स जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है. क्यों सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है? क्योंकि व्हाट ही ईट्स जो है वो नो का ऑब्जेक्ट है. सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज को हम देखते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है. वर्क्स एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. इट वर्क्स एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो ऑल इज नॉट गोल्ड वो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज. ऑल इज नॉट गोल्ड हो गया प्रिंसिपल क्लॉज. दैट ग्लिटर्स हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. उसी प्रकार हम सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज को देखते हैं जो कि सेंटेंस में, वाक्य में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में आता है. वी ईट दैट वी मे लिव. वी ईट जो हो गया वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया. अगर खंडित करते हैं, एनालाइज करते हैं सेंटेंस को, तो वी ईट हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और दैट वी मे लिव हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. वो पर्पस दिखाता है, खाने क्यों खाना खाया जा रहा है, दैट वी मे लिव. अब आइए कंपाउंड सेंटेंस पर आते हैं. कंपाउंड सेंटेंस जो है एक या एक से अधिक एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बनता है. इट कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ही केम एंड ही रिटर्न्ड. वह आया और वह गया, वह लौटा. इट इज कंपाउंड सेंटेंस विद 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या कौन कौन से हैं? ही केम पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है ही रिटर्न्ड, है ना. दोनों को जोड़ा है एंड ने, है ना. तो इस प्रकार जो है ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ. कंपाउंड सेंटेंस में जो है क्लॉज जो है वो इक्वल रैंक के होते हैं. सभी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. तो आशा है, आई होप यू मस्ट हैव गॉट सम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. Types of sentences, we can categorize this today's session in under types of sentences. So how many types of sentences are there? Simple sentence, complex sentence, and then compound sentence. So we have also tried to understand what is predicate, what is complement, what is subjective complement, what is objective complement. Thank you very much. Now if you have any more doubts, you may call me on my WhatsApp number. I am Manish Kumar, teacher of UHS Karaiya, Sarat. You may also go through the notes. Thank you very much, students.